Hi dear, I am Rajiv Chaudhary. Now I am going to make you understand and make your concept clear for the IPC section 96, the right of private defense, that most of the guys wanna to understand through video gonna rather than reading and study, so that listen me carefully and attentively and follow me what I am going to say. Friends, those who is not able to understand, they can understand easily, very well through dual language English and Hindi. And my humble submission is, do not forget to press the like button, subscribe, comment and share. दोस्तों, इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि मेरी वीडियो बनाने में क्या कमी रह गई है, ताकि मैं भविष्य के वीडियो में सुधार कर सकूं। IPC section 96, things done in private defense. Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. Right of private defense cannot be said to be an offense in return. The right of self-defense under section 96 is not absolute but is clearly qualified by section 99, which says that the right in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary for the purpose of defense. It is well settled that in a free fight, no right of private defense is available to either party, and each individual is responsible for his own acts. While it is true that law does not expect from the person whose life is placed in danger to weigh with nice precision the extent and the degree of the force which he employs in his defense, it also does not countenance that the person claiming such a right should resort to force which is out of all proportion to the injuries received or threatened and far in excess of the requirement of the case. The onus of proving the right of private defense is upon the person who wants to plead it, but an accused may be acquitted on the plea of the right of private defense, even though he has not specifically pleaded it. Courts are empowered to exempt in such cases. It must be borne in mind that the burden of proving an exception is on the accused. It is not the law that failure to set up such a defense would foreclose this right to rely on the exception. Once and for all, it is axiomatic that burden and the accused to prove any fact can be discharged either through defense evidence or even through prosecution evidence by showing a preponderance of probability
It is true that no case of right of private defense of person has been pleaded by the accused, not put forth in the cross examination to the eyewitness, but it is well settled that if there is a reasonable probability of the accused having acted in exercise of right of private defense, the benefit of such a plea can still be given to them. The right of private defense, as the name suggests, is an act of defense and not of an offense. Consequently, it cannot be allowed to be used as a shield to justify an aggression. This requires a very careful weighing of the facts and circumstances of each case to decide as to whether the accused had in fact acted under this right. Assumptions with any reasonable basis on the part of the accused about the possibility of an attack do not entitle him to exercise this right. It was held in a case that the distance between the aggressor and the target may have a bearing on the question whether the gesture amounted to assault. No precise yardstick can be provided for fix such a distance, since it depends upon the situation, the weapon used, the background, and the degree of the first thirst to attack, etc. The right of private defense will completely absolve a person from all guilt even when he causes the death of another person in the following situation. If the deceased was the actual assailant, and if the offense committed by the deceased, which occasioned the cause of the exercise of the right of private defense of body and property, falls within any one of the 6 or 4 categories enumerated in section 100 and 103 of the Penal Code. Tangible case. I am going to explain tangible case. The general proverb or adage that necessity knows no law does not find a place in modern jurisprudence. The right of self-preservation is inherent in every person, but to achieve that end, nothing could be done which militates against the right of another person. In the other words, society places a check on the struggle for existence, where to motive of self-preservation would dictate a definite aggression on an innocent person. And second example is Compressore versus Potappa, where a boy in a street was raising a cloud of dust, and a passerby therefore chased the boy and beat him. It was held that the passerby committed no offense. His act was one in exercise of the right of private defense. दोस्तों, जो अपराध अपनी रक्षा के लिए किया जाए
वो अपराध नहीं होता। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को बदले में अपराध नहीं कहा जा सकता। धारा 96 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार पूर्ण नहीं है, लेकिन धारा 99 द्वारा स्पष्ट रूप से योग्य है, जो कहता है कि किसी भी मामले में अधिकार का विस्तार रक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक से अधिक नुकसान पहुंचाने तक नहीं है। यह अच्छी तरह से तय है कि एक स्वतंत्र लड़ाई में किसी भी पक्ष को निजी रक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कृत्यों के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि यह सच है कि कानून उस व्यक्ति से अपेक्षा नहीं करता है जिसका जीवन खतरे में है। अच्छी सटीकता के साथ उस बल की सीमा और मात्रा को तौलना जिसे वह अपने बचाव में लगाता है, यह भी नहीं माना जाता है कि वह व्यक्ति इस तरह के अधिकार का दावा करने के लिए बल का सहारा लेना चाहिए जो प्राप्त होने वाली या धमकी दी गई चोटों के सभी अनुपात से बाहर हो और मामले की आवश्यकता से कहीं अधिक हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो अभिवचन करना चाहता है, लेकिन आरोपी को किसी निजी बचाव के अधिकार की दलील पर बरी किया जा सकता है, भले ही उसने विशेष रूप से उसकी पैरवी न की हो। अदालतों को ऐसे मामलों में छूट देने का अधिकार है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि अपवाद साबित करने का भार अभियुक्त पर है। यह कानून नहीं है कि इस तरह की रक्षा स्थापित करने में विफलता एक बार और सभी के लिए अपवाद पर भरोसा करने के इस अधिकार को रोक देगी। यह स्वयं सिद्ध है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए अभियुक्त पर बोझ को या तो बचाव साक्ष्य के माध्यम से या यहाँ तक कि अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से संभाव्यता की प्रधानता दिखाकर मुक्त किया जा सकता है। यह सच है कि अभियुक्त द्वारा चश्मदीद गवाहों के सामने जिरह में पेश नहीं किए जाने के कारण व्यक्ति के निजी बचाव के अधिकार के किसी भी मामले की पैरवी नहीं की गई है, लेकिन यह अच्छी तरह से तय है कि अगर आरोपी द्वारा कार्रवाई किया जाने की उचित संभावना है, निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग इस तरह के दलील का लाभ अभी भी उन्हें दिया जा सकता है। निजी रक्षा का अधिकार, जैसा कि नाम से पता चलता है, रक्षा का कार्य है, अपराध का नहीं। नतीजतन इस आक्रामकता को सही ठहराने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह तय करने के लिए कि क्या आरोपी ने वास्तव में इस अधिकार के तहत काम किया था, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का बहुत सावधानीपूर्वक वजन करने की आवश्यकता है। हमले की संभावना के बारे में आरोपी की ओर से बिना किसी उचित आधार के धारणाएं उसे इस अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं देती है। यह एक मामले में आयोजित किया गया था कि हमलावर और लक्ष्य के बीच की दूरी इस सवाल पर असर डाल सकती है कि इशारा हमला था या नहीं। इतनी दूरी तय करने के लिए कोई सटीक पैमाना नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह स्थिति, इस्तेमाल किए गए हथियार, पृष्ठभूमि और हमला करने की प्यास की डिग्री आदि पर निर्भर करता है। निजी बचाव का अधिकार किसी व्यक्ति को सभी अपराधों से पूरी तरह से मुक्त कर देगा, भले ही वह निम्नलिखित स्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बने, अर्थात यदि
मृतक वास्तविक हमलावर था और यदि मृतक द्वारा किया गया अपराध जो शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग का कारण बनता है, दंड संहिता की धारा 100 और 103 में उल्लिखित 6 या 4 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत आता है। थंजावेल मामला में क्या था? सामान्य कहावत या कहावत की आवश्यकता कोई कानून नहीं जानता, आधुनिक न्यायशास्त्र में जगह नहीं पाती है। आत्म संरक्षक का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति में निहित है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है जो दूसरे व्यक्ति के अधिकार के विरुद्ध हो। दूसरे शब्दों में, समाज अस्तित्व के संघर्ष पर एक रोक लगाता है, जहां आत्म संरक्षण का मकसद एक निर्दोष व्यक्ति पर एक निश्चित आक्रामकता को निर्देशित करेगा। और कंपरासरे बनाम पुतप्पा में बता रहा हूँ, जहाँ एक गली में एक लड़का धूल के बादल उड़ा रहा था और एक राहगीर ने लड़के का पीछा किया और उसे पीटा। यह माना गया कि राहगीर ने कोई अपराध नहीं किया, उनका कार्य निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में एक था। धारा 97 शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को धारा 99 निहित प्रतिबंधों के अधीन बचाव करने का अधिकार है। पहला उसका अपना शरीर और किसी अन्य व्यक्ति का शरीर, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के खिलाफ। दूसरे, संपत्ति चाहे चल या अचल, स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा के अंतर्गत अपने आने वाला अपराध है, या जो चोरी डकैती करने का प्रयास है, आपराधिक अत्याचार के लिए शरारत। यह धारा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग को परम आवश्यकता की सीमा तक सीमित करती है। यह आक्रामकता का बचाव करने के लिए आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। आक्रमण के रूप में हमलावर से आने वाले खतरे की उचित आशंका होनी चाहिए। यह धारा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को 2 भागों में विभाजित करती है, अर्थात पहला भाग व्यक्ति की निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित है और दूसरा भाग निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित है। निजी बचाव के अधिकार की दलील को लागू करने के लिए उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया जाना चाहिए या करने का प्रयास किया जाना चाहिए जो स्वयं इस तरह के अधिकार का प्रयोग कर रहा हो। हालांकि निजी बचाव के अधिकार के उपार्जन का प्रश्न में व्यक्ति को हुई चोट पर निर्भर नहीं करता है। अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है यदि गंभीर चोट पहुंचने की उचित आशंका स्थापित की जा सकती है। यदि व्यक्ति या व्यक्ति की संपत्ति के लिए खतरा वास्तविक और तत्काल है तो उसे सोने के पैमाने में वजन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह के उपकरण और बल वह पल भर में प्रयोग करता है, निजी रक्षा का अधिकार ने केवल अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए, जैसा कि अंग्रेजी कानून के तहत है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने के लिए भी विस्तारित है। इस प्रकार धारा 97 के तहत एक अजनबी भी किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा कर सकता है और इसके विपरीत जबकि अंग्रेजी कानून के तहत किसी तरह का संबंध
होना चाहिए, जैसे पिता और पुत्र, पति और पत्नी आदि, इस अधिकार से पहले हो सकता है। सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाए। एक सच्चे मालिक के पास एक अतिचारी को बेदखल करने या बाहर निकालने का पूरा अधिकार है, जबकि अतिचार करने वाला अतिक्रमण करने के कार्य या प्रक्रिया में है, लेकिन उसने अपने मिशन को पूरा नहीं किया है। लेकिन यह अधिकार सच्चे मालिक को उपलब्ध नहीं है। यदि अतिचार करने वाला कब्जा हासिल करने में सफल रहा है और उसकी सफलता सच्चे मालिक द्वारा जानी जाती है, ऐसी परिस्थिति में कानून की आवश्यकता है कि सच्चे मालिक को कानून के तहत उपलब्ध अपराधों का सहारा लेकर अतिचार करने वाले को बेदखल करना चाहिए। निजी बचाव के अधिकार की दलील को स्थापित करने का दायित्व अभियुक्त पर है। हालांकि वह यह दिखाने का हकदार है कि यह अधिकार अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर ही स्थापित है या बनाए रखा जा सकता है। निजी रक्षा का अधिकार विशुद्ध रूप से निवारक है और दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक नहीं है। एक बार जब यह माना जाता है कि अभियुक्तों की पार्टी हमलावर थी, तो केवल इसलिए कि एक बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। जब पार्टी के कुछ लोगों को, उन लोगों के हाथ कोई चोटें आई जो अपनी धान की फसल की रक्षा कर रहे थे और पार्टी की आक्रामकता का विरोध कर रहे थे, आरोपी को आईपीसी की धारा 302 से बाहर करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। अन्यथा चोट लगने से मामला हत्या की परिभाषा में आ सकता है और आ जाता है। छोटे लाल बनाम राज्य का एग्जाम्पल है। सपोज दैट बी और ए और बी के बीच विवाद के अधीन भूमि पर एक संरचना का निर्माण कर रहा था। ए उसे गिराने का प्रयास कर रहा था, इसलिए बी ने ए पर लाठी से हमला किया। यह माना गया कि ए बर्बादी के अपराध के लिए जिम्मेदार था और इसलिए बी को अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार था। परिछत बनाम मध्य प्रदेश राज्य का है, एक मैं बता रहा हूँ। पिता के सिर पर लाठी से वार, आरोपी पुत्र ने मृतक के सीने पर लाठी से वार किया। अदालत ने फैसला किया कि आरोपी ने स्पष्ट रूप से निजी बचाव के अपने अधिकार को पार कर लिया है।